Hi students, we are going to discuss chapter how do organisms reproduce for class 10 in this video. वैसे इस चैप्टर के 3-4 अलग-अलग टॉपिक के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल में, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और ये चैप्टर हम लोगों ने स्टडी मटेरियल से जो मैं प्रोवाइड करता हूँ स्टडी मटेरियल से वर्ड टू वर्ड डिस्कशन किया है। तो इस स्टार्टिंग पार्ट का वीडियो आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन है, फर्स्ट 3-4 पॉइंट्स फ्रॉम द मटेरियल। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 1, सिंस नेम ऑफ द चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, you should know the meaning of the term reproduction. You should know the meaning of the term reproduction. वैसे हम लोग जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जिससे ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई करते हैं उनका नंबर। So reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. It is the most important characteristics of living organism as it ensures perpetuation, means continuity and survival of race. The reproduction is the process by which living organism produce new individuals similar to themselves. तो ये कैसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग्स अपने जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपने कभी सुना है नॉन लिविंग बीइंग्स कैन दे रिप्रोड्यूस, कैन दे प्रोड्यूस individuals or pieces similar to themselves? It is impossible. So reproduction is a characteristic of living organism, and the process of reproduction ensured continuity of life on earth. अर्थ पे लाइफ जो हजारों साल से कंटिन्यू है, जब से लाइफ स्टार्ट हुआ है अर्थ पे तब से अब तक लाइफ कंटिन्यू है अर्थ पे, because of which process? Because of reproduction. And during reproduction you know that there is variation. Variation क्या होता है? Variation means differences among the individuals of the same species. Okay. और वेरिएशन का कॉज हम लोगों ने डिस्कस किया था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में। द कॉज ऑफ वेरिएशन इज व्हाट? इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग। सो through reproduction, variations produced in living body are transmitted to the next generation. तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि वेरिएशंस जेनेटिक भी होते हैं। These variations are due to genes, okay, and these variations are transmitted generation after generation. By which process? Reproduction. The accumulation of various forms of variation generation after generation ultimately leads to origin of new forms or species. तो ये वेरिएशन ही है जिसके वजह से इवोल्यूशन होता है, और वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहता है। जेनेटिक जो जीन से रिलेटेड वेरिएशंस है, दीज वेरिएशंस गेट एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और इसका एक एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था in the chapter heredity and evolution, that variations get accumulated generation after generation. The great diversity of living world present today is actually the outcome of cumulative effect of variations and its inheritance through reproduction. तो generation after generation variations accumulate होते रहते हैं, और ये एक्यूमुलेटेड वेरिएशन और ट्रांसमिट होते और एक्यूमुलेट होते, इस तरह क्या होगा? थोड़ा थोड़ा चेंजेस होते जाएगा इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एंड दैट लीड्स टू व्हाट? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, दैट लीड्स टू इवोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन? अगर आपको एक सेंटेंस में बताना है तो वेरिएशंस आर द रॉ मटेरियल्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। Variations are the raw materials for evolution. Evolution होने के लिए वेरिएशन होना जरूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं अबाउट पॉइंट 3, reproduction, a bridge to hereditary transmission.
तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट 3 तक ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे और पॉइंट 4 ऑनवर्ड्स ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Reproduction, a bridge to hereditary transmission. Reproduction is responsible for transmission of character from one generation to another. और वो कैरेक्टर ट्रांसमिशन का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसको हम लोग बोलते हैं हेरिडिटी। तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जीन्स ट्रांसमिट होंगे, ओके, और कैसे ट्रांसमिट होंगे वो हम लोग स्टडी करते हैं हेरिडिटी में। So the different members of a species look similar in most of their characters, although individual differences do occur. The different member of a species, मान लेते हैं human beings. Human beings का scientific name Homo sapien, हम लोगों का species का नाम है sapien. तो क्या हम लोग सभी एक जैसे इंडिविजुअल हैं? हम लोगों का species तो सेम है, क्या हम लोग एक जैसे इंडिविजुअल है? क्या हम लोगों में डिफरेंसेस नहीं है? यस, वी हैव डिफरेंसेस, ओके, वी हैव डिफरेंसेस, और उन डिफरेंसेस को बोला जाता है वेरिएशन। सो द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज लुक सिमिलर इन मोस्ट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, ऑल्दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस डू ऑकर। दे एग्जिबिट सिमिलरिटीज इन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा, जितना भी इंडिविजुअल है ह्यूमन बीइंग्स का ऑन अर्थ, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या? उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, हार्ट में कितना चैम्बर? सभी में 4 चैम्बर, ओके। देन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ब्रेन, ओके, वेरियस सिस्टम्स लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So they exhibit similarities in all their basic characters and in the process of reproduction. एक स्पीसीज का सभी इंडिविजुअल्स का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी सेम होगा. If I ask you what type of reproduction is seen in human beings, simple answer, sexual reproduction. They transmit their characters to the next generation through the process of reproduction. तो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस से. कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट होगा? दैट इज स्टडीड इन हेरिडिटी. दिस इंडिकेट्स दैट द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डेजिग्नेटेड कैरेक्टर्स आर सिमिलर, and during reproduction copies of these blueprints are produced to be transmitted to the next generation. एक स्पीसीज का सभी इंडिविजुअल का बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा है, फिर भी कुछ डिफरेंसेस होता है. बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा होना ये समझाता है कि हम लोग सभी का बॉडी स्ट्रक्चर का जो ब्लूप्रिंट है वो एक जैसा है, कुछ डिफरेंसेस के साथ. सो यहां पे ये सेंटेंस समझने की कोशिश करना. दिस इंडिकेट्स दैट द ब्लूप्रिंट ऑफ दीज डेजिग्नेटेड कैरेक्टर्स आर सिमिलर, and during reproduction copies of these blueprints are produced to be transmitted to the next generation. The continuation of characters from one generation to another occurs through narrow bridge of cellular component containing the blueprints of future generation. ये जो कैरेक्टर ट्रांसमिशन होता है ये होता है एक नैरो ब्रिज बोला जाता है, सेल्यूलर कंपोनेंट का एक ब्रिज बोला जाता है. ये ब्रिज है डीएनए, ओके, और इस डीएनए के पास से ब्लूप्रिंट है बॉडी डिजाइन का. फ्यूचर जनरेशन का बॉडी कैसा होगा और वो बॉडी डिजाइन कैसा होगा, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? डीएनए में. तो जब भी रिप्रोडक्शन होगा डीएनए का कॉपीज बनेगा, लेकिन डीएनए का कॉपी बनना एक बायोकेमिकल रिएक्शन है और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता. तो जो डीएनए का नया कॉपी बनेगा वो ओरिजिनल कॉपी से थोड़ा अलग होगा, और वो अलग जो हो गया डीएनए में थोड़ा चेंजेस हो गया, दैट डीएनए विल डिसाइड कि फ्यूचर जनरेशन का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा. सो वी डिस्कस्ड फर्स्ट पैरा टिल नाउ.
वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस सेकेंड पैराग्राफ हियर। अब तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि बॉडी स्ट्रक्चर का जो ब्लूप्रिंट है, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी इंडिविजुअल का, वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, डीएनए में लोकेटेड है। एंड दैट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम or transferred from one generation to the next generation through this DNA। लेकिन डीएनए जो बना था, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, वो थोड़ा इनएक्यूरेसी से बना था। तो उस डीएनए में क्या है, थोड़ा माइनर चेंजेस हैं, एंड दीज चेंजेस लीड टू व्हाट, वेरिएशन। So look at the second para there. The cellular component of the hereditary transmission are in the form of macromolecule called DNA or deoxyribonucleic acid। तो ये कौन सा सेलुलर कंपोनेंट है, सेल में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एंड दैट इज डीएनए। फुल फॉर्म इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम व्हिच themselves resides in the nucleus। हम लोग जानते हैं कि डीएनए क्रोमोसोम के अंदर होता है। A chromosome is made up of two main components, DNA and protein। DNA and protein, हिस्टोन प्रोटीन होता है। यहां बोला गया है कि हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के लिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, मैक्रो मीन्स द बिग मॉलिक्यूल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, it is present in chromosome and chromosome themselves are present where inside the nucleus। DNA contains all the information to make specific protein which in turn form enzyme to control the chemical reaction of the body। डीएनए कैसे आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको कंट्रोल करेगा, नेक्स्ट जनरेशन का बॉडी का स्ट्रक्चर होगा उसको कंट्रोल करेगा। डीएनए कैसे करेगा, डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है फॉर मेकिंग प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन एक्ट एज एंजाइम, और वो एंजाइम कंट्रोल करेगा बायोकेमिकल रिएक्शन को। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल का डीएनए में इंफॉर्मेशन है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का हाइट ज्यादा होना है, तो हाइट ज्यादा होने के लिए उस इंडिविजुअल में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज्यादा होना होगा। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन होगा बायोकेमिकल रिएक्शन से। ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन के लिए एफिशिएंट एंजाइम्स का प्रोडक्शन होना होगा, एफिशिएंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होना होगा। किस टाइप का एंजाइम्स और प्रोटीन, किस टाइप का प्रोटीन बनेगा, वो इंफॉर्मेशन कहाँ है, डीएनए के पास। तो इस तरह डीएनए जीन्स कंट्रोल करेगा कि आपका हाइट ज्यादा होगा या कम होगा। It is these chemical reaction which govern the metabolism of the body to produce specific characters। तो इस तरह केमिकल रिएक्शन आपका बॉडी का फिजिकल कैरेक्टर डिसाइड करेगा। Thus, for transmitting the characters from to the next generation prior to reproduction, DNA forms its copies to be transported to the newly formed reproductive cell। तो रिप्रोडक्शन के पहले कौन सा बेसिक इवेंट होना जरूरी है? रिप्रोडक्शन का मतलब है नया इंडिविजुअल बनेगा, और नया इंडिविजुअल बनने से पहले नया इंडिविजुअल का ब्लूप्रिंट बनना जरूरी है। और वो ब्लूप्रिंट क्या होगा? ब्लूप्रिंट डीएनए, मतलब डीएनए को अपना कॉपीज बनाना होगा। और डीएनए कॉपिंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन से होने वाला है, और कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता। तो बॉडी बनने से पहले ब्लूप्रिंट बनना है। ब्लूप्रिंट यानी डीएनए बनना है। डीएनए में वो सभी इंफॉर्मेशन होगा कि बॉडी कैसा बनेगा। फिर वहां से इंस्ट्रक्शन आएगा टू कंट्रोल बायोकेमिकल रिएक्शन, और बायोकेमिकल रिएक्शन कंट्रोल करके आपका बॉडी का फिजिकल अपीयरेंस डिसाइड होगा, जैसे मैंने हाइट वाला एग्जांपल दिया। The process of formation of new DNA strands from the older one is called replication of DNA, also called DNA copying। And during replication, DNA forms an exact copy of its own, but mistakes or inaccuracy in the process of replication may occur।
डीएनए कॉपिंग के वक्त इनएक्यूरेसी होना ही है, समझ लीजिए आप। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है कंपेयर टू व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ज्यादा वेरिएशन होता है। इन दिस वे two cells receiving their DNA content from the parent cell may have DNA possessing some variations. Okay, the two cells receiving their DNA content from the parent cells may have DNA possessing some variation. तो यहाँ बात हो रहा है कि एक सेल से जो दो सेल बनेगा उनमें जो डीएनए आएगा वो पेरेंट सेल का डीएनए से अलग होगा कि नहीं? अलग होगा। क्यों? क्योंकि डीएनए कॉपिंग होता है बायोकेमिकल रिएक्शन से, और बायोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है एंजाइम पे, और ये एंजाइम एंड अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। सभी फैक्टर्स, एंजाइम का एफिशिएंसी, ये सब फैक्टर मिलके डिसाइड करता है कि नया जो डीएनए बनेगा वो पेरेंट जैसा डीएनए होगा कि नहीं, और ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होता हम लोग बोल सकते हैं। These variations may be small or large, मतलब वेरिएशन होना ही है। Thus, all the reproductive gametes may not have exactly the same characters. एक सेल बन के अगर एक सेल डिवाइड होके अगर चार सेल बनेगा गैमेट बनते वक्त, उन चारों सेल में डीएनए में कुछ न कुछ चेंजेस रहेगा। In this way, mistake in the process of DNA replication is one of the fundamental reason for the origin of variation. तो वेरिएशन का मेन कॉज क्या है? इनएक्यूरेसी इन डीएनए कॉपिंग, और वेरिएशन से क्या होता है? इवोल्यूशन। सो यहां पे जो सेंटेंस है दैट in this way mistakes in the process of DNA replication is one of the fundamental reason of the origin of variation, which is passed over to the next generation through the process of reproduction. So blueprints of the next generation actually is stored in the DNA macromolecule. तो ये ब्लूप्रिंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन का ब्लूप्रिंट कहां पे है? डीएनए में है, and it may be considered as the bridge of the hereditary transmission through the process of reproduction. इसका मतलब डीएनए ही वो ब्रिज है जो रिस्पॉन्सिबल है हेरिडिटरी ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। थैंक यू।